Hello friends, NCERT Exemplar Problems Part 4. Actually ये 39th lecture continued and differentiating में 39th lecture चल रहा है। अभी भी बहुत बाकी है, लेकिन इस लेक्चर में कई और चुने हुए समय y is equal to tan inverse a cos x minus b sin x upon b cos x plus a sin x, where minus pi by 2 less than x less than pi by 2 and product of a by b and tan x is greater than minus 1, then find dy by dx. Y is equal to tan inverse a cos x minus b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, पहले डिवाइड बाय a cos x, डिवाइड बाय a cos x all the terms. So tan inverse, divide by b cos x minus b sin x upon b cos x, yeah. b cos x upon b cos x, we are dividing all terms by b cos x. So we can get a by b because cos x will be cancelled, sin by cos it is tan x, b cos x cancels, so 1, and a by b tan x. You all are knowing very well that tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus y upon 1 plus xy, right? तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है उस तरह का फॉर्म यहाँ है, tan inverse x minus y, this is as of y, a by b, suppose it is x, and tan x suppose it is y, so x minus y upon 1 plus x into y. We can write it this way, tan inverse x minus tan inverse y, so it is tan inverse x मतलब a by b minus tan inverse y मतलब tan x. So we can write left hand side this way, tan inverse x minus tan inverse y. This is y. Tan inverse a by b is constant because a and b are constant. That is why the value of tan inverse a by b is constant. Now the composition of tan and tan x and tan, मतलब tan x and tan inverse, tan and tan inverse. So it is x. Composition is x, y. Is it composite? Yes, because x belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2, it is given, and minus pi by 2 to plus pi by 2 is the range of tan inverse. So x belongs to range of tan inverse. That is why tan x and tan inverse, this composition is possible. Now we can find the differentiation of these two terms.
differentiate with respect to x both the side. As per we told, tan inverse a by b, it is constant, and the differentiation of constant function is 0, and the differentiation of x is 1, so answer is -1. So we can get -1 divided by dx is equal to -1. Question number 43. Y is equal to tan inverse root of 1 plus x square plus root of 1 minus x square upon root of 1 plus x square minus root of 1 minus x square, and -1 less than x less than 1, and x is equal to not 0. Find dy by dx. Let x square is equal to cos theta. We know that -1, it is given, -1 less than x less than +1. If x belongs to -1 to +1, then so x square belongs to 0 to 1, because x square is not non-negative number. So if x belongs to -1 to +1, then x square belongs to 0 to 1. Correct? x square is equal to cos theta. यहाँ पर हमने एज्यूम किया है x square is equal to cos theta. So we can put x square is equal to cos theta. Right? तो जो ये 0 and 1 है वो उसकी जो वैल्यू है वो हमें cos के हिसाब से cos theta के हिसाब से लिखना पड़ेगा. मतलब in terms of cos we know that the value of 0 is cos pi by 2. मतलब value of cos pi by 2 is 0. X square is equal to cos theta. It is an assumed part. 1 is equal to cos 0. So pi by 2 greater than theta greater than 0. Why this inequalities will be changed? Because cos is a decreasing function in 0 to pi by 2. So pi by 2 greater than theta greater than 0. If we are changing the inequalities, then we can write 0 less than theta less than pi by 2. Right? Now y is equal to tan inverse 1 plus x square. We have assumed x square is equal to cos theta, that is why 1 plus cos theta. यहाँ 1 minus cos theta लिखना पड़ेगा. यहाँ 1 plus cos theta हो जाएगा. यहाँ 1 minus cos theta. Y is equal to tan inverse. What is the formula of 1 plus cos 2 theta? You know very well, 1 plus cos 2 theta is equal, 1 plus cos theta is equal to 1 plus cos theta by 2 is equal to cos per theta by 2. यहाँ पर हमें वैल्यू लिखना है 1 plus cos theta की, so it is 2 cos per theta by 2, right? 1 plus cos है इसलिए 2 cos per theta by 2. अगर 1 minus cos है तो हमें लिखना पड़ेगा 2 sin per theta by 2. तो जो
है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ पर, यहाँ 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। y is equal to tan इनवर्स, यहाँ पर हमें 2 कॉमन लेना है, मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, √2 cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। Square root is positive because theta belongs to 0 to pi by 2 and so it is in first quadrant। हमें तो cos theta by 2 के लिए quadrant फाइंड करना है। theta by 2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा क्योंकि 0 to pi by 2 है थीटा की रेंज, तो थीटा by 2 तो उनसे भी आधा हो जाएगा, मतलब 0 to pi by 4 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव ही मिलेगा। y is equal to tan इनवर्स, √2 कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में भी √2 है, डिनोमिनेटर में भी √2 है कॉमन। We are dividing all the terms by cos theta by 2, so it is 1 plus sin theta by 2 upon cos theta by 2, मतलब tan theta by 2, 1 minus tan theta by 2, so y is equal to tan inverse, this is tan pi by 4, right, plus tan theta by 2, 1 माइनस, यहाँ पर 1 तो है ना, तो tan pi by 4 लिख सकते हैं, तो ये tan अल्फा प्लस tan बीटा, 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, so it is a formula of tan pi by 4 plus theta by 2। अब ये कंपोजिशन करना है, कंपोजिशन करने के लिए pi by 4 plus theta by 2 tan इनवर्स की रेंज में होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 2 तो है, तो थीटा बाई 2 0 टू पाई बाई 4 में ही आ जाएंगे, राइट। हमें थीटा बाई 2 की तो रेंज मिल गई, हमें पाई बाई 4 ऐड करना है, तो ये पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, यहाँ पर पाई बाई 4 ऐड करेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएंगे, सो पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, मतलब कि यहाँ पर आ जाएंगे। एक्चुअली माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 इज द बेसिक रेंज ऑफ tan इनवर्स, पर यहाँ तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में ही आ जाते हैं, सो we can composite it, pi by 4 plus theta by 2 मिल जाएंगे, so y is equal to pi by 4 plus theta by 2, थीटा मतलब cos इनवर्स x स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x स्क्वायर मिलेंगे। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो dy by dx is equal to d by dx of pi by 4 प्लस 1 by 2 कांस्टेंट है, d by dx of cos इनवर्स x स्क्वायर, ये जो pi by 4 है वो कांस्टेंट है, सो द डेरिवेटिव ऑफ pi by 4 इज 0। यहाँ पर cos इनवर्स x होता है अगर, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है -1/√1 माइनस x स्क्वायर, पर यहाँ x स्क्वायर है तो हमें यू एज्यूम करना पड़ेगा -1/√1 माइनस यू स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर, और d by dx और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी बाकी रहेगा क्योंकि हमने यू एज्यूम किया है, तो 1/2
-1/√(1 - x⁴ हो जाएगा और x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, 2 कैंसिल हो जाएगा तो -x/√(1 - x⁴ is the final answer. If x is equal to a sin 2t into 1 plus cos 2t, और y is equal to है b cos 2t into 1 minus cos 2t, then prove that dy by dx at t is equal to pi by 4 is equal to b upon a. यहां पर 2 इक्वेशन दिए गए हैं, इसको हम पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि t is a parametric constant and x and y are the variables. So we have to differentiate it separately. पहले हम फाइंड करेंगे dx by dt, then after we will find dy by dt, then we will find dy by dx. तो x is equal to a sin 2t 1 plus cos 2t, तो ये है a sin 2t और 1 plus cos 2t का ये मल्टीप्लिकेशन है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. सो dx by dt is equal to यहाँ पर a into sin 2t as a outer function and d by dt of 1 plus cos 2t, right? प्लस ये तो कांस्टेंट है 1 plus cos 2t और d by dt of sin 2t. तो ये sin 2t 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, cos 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin 2t और 2t है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 प्लस a 1 plus cos 2t is outer function. Now we want to derivative with t, derivative with respect to t of sin 2t. sin 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2t एंड 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2. तो कुल मिला के यहाँ पर हमें 2 कॉमन लेना है, a कॉमन है तो माइनस साइन स्क्वायर 2t यहाँ पर होगा प्लस ये ब्रैकेट हम ओपन कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो cos 2t प्लस cos स्क्वायर 2t, 2 और a दोनों मैंने कॉमन ले लिया है तो यहाँ 2a, ये है cos 2t और ये cos स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t का एक फॉर्मूला बन जाएगा, वो बन जाएगा cos 4t, क्योंकि आप जानते हैं कि cos 4t इसको क्या होगा, cos 4 थीटा है तो cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा फॉर्मूला है, यहाँ थीटा नहीं है t है तो cos 4 थीटा, राइट? तो dx by dt यहाँ पर मैंने cos स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा 2t है उसका फॉर्मूला हमने cos 4t लिख दिया है तो ये मिल गया dx by dt.
Now we are finding dy by dt. What is y? Y is equal to b cos 2t into 1 minus cos 2t. Differentiate with respect to t. So b cos 2t is outer function and differentiation of 1 minus cos 2t plus use working rule, right, of product rule. So b cos 2t is the outer function and d by dt of 1 minus cos 2t plus 1 minus cos 2t. b into 1 minus cos 2t is the outer function and d by dt of cos 2t. तो b cos 2t, b कॉमन है तो मैं यहां पर लिखूं या यहां पर लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 1 इसका डिफरेंशिएशन 0, cos 2t का माइनस sin 2t हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और 2t का तो 2 है ही. यहाँ पर b 1 minus cos 2t ऐसा आउटर फंक्शन है. cos 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin 2t और 2t का तो 2 है. तो यहाँ पर भी मैं b और 2 मतलब 2 into b 2b कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा sin 2t into cos 2t. यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 2 और b तो कॉमन है, माइनस sin 2t बचेगा और माइनस माइनस प्लस sin 2t into cos 2t. तो ये 2b अब देख सकते हैं sin 2t cos 2t, sin 2t cos 2t 2 टाइम्स है, सो 2 sin 2t cos 2t माइनस sin 2t, राइट. ये दोनों मैंने मिला दिया है. अब 2 sin अल्फा cos अल्फा अगर है, 2 sin अल्फा cos अल्फा है तो हम sin 2 अल्फा लिख सकते हैं. तो 2 sin 2t है, cos 2t है तो उसका डबल एंगल क्या होगा sin 4t. यहाँ पर 2 2 है, यहाँ अल्फा अल्फा है तो sin 2 अल्फा, तो यहाँ पर 2t into 2t है तो 4t हो जाएगा. तो 2b sin 4t हो जाएगा माइनस sin 2t. अब ये है dy by dt, राइट. तो हमें क्या करना है, dy by dx फाइंड करना है. तो dy by dx is equal to dy by dt अपॉन dx by dt. वो तो रूल हम जानते हैं. dy by dt का जो वैल्यू है वो है 2b sin 4t माइनस sin 2t है, राइट. और dx by dt का जो वैल्यू है हमारे पास वो है 2a cos 2t प्लस cos 4t है. 2 तो मैं कैंसिल कर ही देता हूं, b बाई a बचेगा sin 4t न्यूमरेटर में माइनस sin 2t, डिनोमिनेटर में cos 2t प्लस cos 4t, राइट. अब ये जो मिला वैल्यू में मुझे dy by dx का, मुझे dy by dx की वैल्यू चाहिए लेकिन एट पॉइंट t is equal to pi by 4. तो dy by dx at t is equal to pi by 4 is equal to b by a है. यहाँ मैं अगर pi by 4 प्लेस करता हूँ t की जगह पर तो जब भी t is equal to pi by 4 प्लेस करता हूँ तो ये हो जाएगा sin pi, क्योंकि 4 तो कैंसिल हो जाएगा. sin pi की वैल्यू तो 0 है. यहाँ पर मैं t is equal to pi by 4 लेता हूँ तो sin pi by 2 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, आगे माइनस है. यहाँ पर मैं pi by 4 अगर प्लेस करता हूँ cos 2t में तो cos pi by 2 हो जाएगा, उसकी वैल्यू में 0 मिलेगी. cos 4t यहाँ पर t is equal to pi by 4 प्लेस करते हैं तो cos pi हो जाएगा और cos pi की वैल्यू -1 है. तो b by a minus b upon minus a, so it is b by a. Hence proved.
28 सम है. If ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, then show that dy by dx into dx by dy is equal to 1. यहाँ जो इक्वेशन दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. आपको पहले क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. बाद में जब ये dy by dx वाली प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाए तब आपको फाइंड करना है dx by dy. मतलब कि आपको इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू y. सो dx by dy will be obtained, and then after we will do the product of dy by dx and dx by dy, and the result will be obtained 1. तो स्टार्ट करते हैं. ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Differentiate with respect to x. So a is constant, d by dx of x square plus 2h is constant, d by dx of x into y. b is constant, so d by dx of y square. 2g is constant, d by dx of x. 2f is constant, d by dx of y plus d by dx of c is equal to 0. So differentiation of x square is equal to 2x because the differentiation of x square is with respect to x, that is why it is 2x. यहाँ पर x and y का प्रोडक्ट है तो आपको प्रोडक्ट रूल का यूज करना पड़ेगा. y is the outer function and d by dx of x is equal to, so differentiation of x is equal to 1. x is the outer function and differentiation of y is dy by dx plus b. यहाँ पर y स्क्वायर है और जो हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है वो विद रिस्पेक्ट टू x है, तो हमें u स्क्वायर एज्यूम करना पड़ेगा. डायरेक्ट x स्क्वायर का जो 2x लिख दिया वैसे हम नहीं लिख सकते. यहाँ पर हमें 2y और y का डिफरेंशिएशन होगा dy by dx. 2g कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 है. 2f कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन dy by dx है. और कौन सी तो वैसे ही अकेला है कांस्टेंट, तो उसको उसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा. हमें 2ax तो कॉमन है, कैंसिल कर दो तो ax बचेगा. यहाँ पर hy प्लस hx डिवाइड बाय dx में ब्रैकेट भी ओपन कर देता हूँ एक स्टेप में. 2 कॉमन लिया है तो वो कैंसिल हो जाएगा. डिवाइड बाय dx प्लस g बचेगा f डिवाइड बाय dx. तो 3 टर्म ऐसे हैं जिसमें डिवाइड बाय dx है और 3 टर्म ऐसे बचे हैं जिसमें डिवाइड बाय dx नहीं है. तो जो डिवाइड बाय dx वाला टर्म है वो hx प्लस dy प्लस f डिवाइड बाय dx कॉमन, और बाकी बचे तो विदाउट डिवाइड बाय dx है उसको हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में. सो माइनस ax माइनस hy और माइनस g. अब सो डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू माइनस कॉमन ax प्लस hy प्लस g अपॉन hx प्लस by प्लस f. इट इज रिजल्ट नंबर 1. तो मैंने फाइंड कर लिया डिवाइड बाय dx, राइट. अब मुझे फाइंड करना है dx by dy.
प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। फिर से पूरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। So a d by dy of x square 2h d by dy of xy, b कॉमन है तो d by dy of y square 2g d by dy of x plus 2f कॉमन है d by dy of y and last term d by dx of c is equal to 0। यहाँ टोटली ये उल्टा हो गया। यहाँ d by dx और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मतलब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम 2x लिख सकते थे। यहाँ पर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन है वो रिस्पेक्ट टू y है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मतलब u स्क्वायर में एज्यूम करना पड़ेगा। तो 2x और x का डिफरेंशिएशन मतलब u का डिफरेंशिएशन अभी बाकी है तो इट इज dx by dy। जो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर वैसा यही नहीं होगा। यहाँ y स्क्वायर का हमें क्या करना पड़ेगा 2y dy by dx क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू x है। तो जो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा तो डायरेक्ट 2y हम लिख पाएंगे क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू y है। यहाँ 2h यह प्रोडक्ट है x एंड y तो y एज आउटर फंक्शन और x का डिफरेंशिएशन होगा dx by dy। x एज आउटर फंक्शन एंड y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस b y स्क्वायर का डायरेक्ट 2y। यहाँ पर dy by dx नहीं लिखना पड़ेगा जैसे यहाँ लिखा था। ये भी y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है और ये भी y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है डायरेक्ट 2y राइट। कंडीशन अलग है, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू y है और यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x है, बस वही डिफरेंट है। तो y का डिफरेंशिएशन 1 है, यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन dy by dx था लेकिन वो कहीं वो जो बात थी वो चली गई, ये बात नहीं आ गई। यहाँ पर हमें y के हिसाब से डिफरेंशिएशन लगाना है। c का तो 0 वो तो बदलेगा नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट है। यहाँ 2 कॉमन निकाल देते हैं तो ax dx by dy प्लस hy dx by dy प्लस 2hx मतलब 2 तो कॉमन निकाल दिया है प्लस by प्लस g प्लस यहाँ पर है x का डिफरेंशिएशन मैंने 1 लिख दिया है वो हो जाएगा dx by dy राइट क्योंकि ये y के हिसाब से है तो यहाँ g dx by dy बचेगा। कभी कभी ये गलती से मिस्टेक हो जाती है। f is equal to 0। अब 3 टर्म ऐसे है जिसमें dx by dy है तो ax प्लस hy प्लस g इसमें dx by dy है मैंने कॉमन ले लिया। बाकी बचे जो टर्म्स है वो मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ। माइनस hx है मतलब राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस by माइनस f। सो द वैल्यू ऑफ dy by dx by dy is equal to माइनस कॉमन hx प्लस by प्लस f। यहाँ पर है ax प्लस hy प्लस g। इट इज रिजल्ट नंबर 2। अब हम देख सकते हैं रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2। नाउ from 1 and 2 the product of dy by dx and dx by dy is equal to 1 क्योंकि यहाँ पर जो ax plus hy plus g न्यूमरेटर में है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में है वो वहाँ न्यूमरेटर में है तो वो कैंसिल हो जाएगा अगर उसका प्रोडक्ट हम लेंगे तो।
तो इस तरह आप देख सकते हैं कि dy by dx और dx by dy दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 प्रूव हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सम है, लेकिन कुछ सम में यहाँ पर बोर्ड पर सॉल्व करवाया है, कुछ मैं पीडीएफ में वैसे ही भेज दूंगा क्योंकि आप ये जल्दी से बहुत ही ज्यादा सम तक पहुंच सके हो।